பாத்தீங்களா மாமா, உங்க மாமா கண்டில் தம்பி ஏன் பழனிவேல் சித்தப்பா கூட தெளிவாதான் இருக்காரு, திறக்கிறாரு. கதிர் தம்பி அவங்களா என்ன தேவைன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கும் தனியா பண்றாங்க. நீங்க தான் மாமா பழக்க தெரியாதவராவே ஏதாவது பண்ணி தர சொல்லி மாமா கிட்ட கேக்குறீங்களா? ஒன்னும் கிளாஸ் எடுக்க வேணாம். ஆமா, இங்க பாரு, யார்கிட்ட என்ன ஏது கேக்குறோன்னு எனக்கு தெரியும். நீ கிட்ட மட்டும் தான் இந்த பேச்செல்லாம், மத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் நீங்க புத்திசாலித்தனமாவே என்ன முட்டாள்னு சொல்றியா? ஐயோ ஆத்தி, நான் அப்படிலாம் சொல்ல நடந்துக்க மாட்டேங்க. என்னத்த சொல்ல? அப்ப இங்க பாரு, முட்டாளா இருக்கலாம், ஆனா திருட்டு வேலை பண்றவங்களா இருக்க. நான் என்ன திருட்டு வேலை பண்ண? அதான் ஆதார் கார்டு விஷயத்துல என்கிட்ட எதையும் மாறாது. யாரு திருட்டு வேலை பண்ணாங்க? நீதான் நினைக்கிறீங்க. எதுவுமே பேச முடிய மாட்டேங்குது மாமா. ஏதோ நல்லதா 4 வார்த்தை பேசினாலே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? இதுக்குதான் உங்ககிட்ட என் மேல வந்து பாயிருங்க. எனக்கு வீட்டுல ஏக தள்ளுங்க பட்ட வேலை இருக்கு, நான் கிளம்புறப்பா. இவர்கிட்ட பேசினா இவர் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். நீங்க என்னமோ பண்ணுங்க, எனக்கு என்ன வந்துச்சு, நல்லதா 4 வார்த்தை சொல்லுங்க. அப்போ சொன்ன வயசு சொல்லிடக்கூடாது, உடனே நம்மள சொல்லிடுவாரு. பொய்யா? இல்லை சரவணா, இல்லை அப்பா இங்க வலிக்கு இருக்கு. இல்லை அது இல்லப்பா, போன் வந்துச்சுப்பா, அதான் பேசிட்டு இங்கே அப்படியே நின்னுட்டப்பாங்கப்பா. அப்பா அப்ப கடையில இருக்கா? கடையில மயிலோட அப்பாவும் இருக்கா. மயில மட்டும் கொஞ்சம் வெளியில கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுமா? எங்கடா கொடுங்க? அது ஏதோ வேண்டுதல்னு சொன்னாப்பா, கூட்டிட்டு போய். அது கோயிலுக்குப்பா, போயிட்டு சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வந்துடுறேன்ப்பா. சரிடா, வியாபாரம் வந்துடுறா. சரிப்பா. கம்மியா இருக்க டைம் தானே, பார்த்து போயிட்டு வா. இல்லை சீக்கிரம் நம்ம கடை தான். நான் எப்ப இங்கதான் இருப்பேன். ஆமா சார், கடைக்கு எப்ப வேணா வாங்க. மயில, நீ என் கூட கொஞ்சம் வா, வெளியில போயிட்டு வந்துடலாம். எப்பவோ கூட்டிட்டு போவாருன்னு பார்த்தா இப்பவே கூட்டிட்டு போறாரு. திடீர்னு ஏப்பா எங்க போறோம்? அத நான் போற வழியில சொல்றேன், வா. எதுக்கு மாமா? அதான் கூப்பிடுறியால, ஏன் கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்டு? சரிங்க மாமா. மயிலு இங்க வா. மடி இருக்க சந்தோஷமா போயிட்டு வாப்பா. என்னப்பா? மாப்பிள்ள ஏதோ சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்காரு உனக்கு, கூட போயிட்டு வா. சின்ன கிளம்பலாமா? கிளம்பல மாமா. வரட்டு அதெல்லாம் தெரியல, நீ ஜாலியா போயிட்டு வாமா. மாமா நான் போயிட்டு வரேன். இது இது யாரோட ஆதார் கார்டு? சரிப்பா, வரப்பா. மாமா உன்னோட தான். என்னோடதா? இல்லையே, ஏன் கார்டு கொடுங்க. ஏன் மாமா பிறந்த தேதி தப்பா போட்டிருக்கு? இல்ல இல்ல 99. எப்படி இது மாறுச்சு? நான் பிறந்த வருஷம் 94 இல்ல. ஏய், கேவலமா நடிக்காதடி. என்னை மாட்டி விடணும்னு நீங்க தான் எதையோ நம்பரை மாத்தி போட்டிருக்கீங்க. பொய் சொல்றது, நம்பரை மாத்துறது ஒரு கோடு பொண்ணோட வேலை, என்னோட வேலை கிடையாது. என்ன மாமா இப்படி பக்கத்துல இன்னொரு கோடு போட்டு பிரெக்னெண்டா இருக்கான்னு சொல்லி பொய் சொல்றது, இதெல்லாம் உனக்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசுறீங்க. இது ஏதோ தப்பு. எல்லாம் உங்க அப்பா கிட்ட இருந்தா வாங்கினேன். அப்பானா ஆதார் கார்டு இது எப்படி உங்க கைக்கு வந்ததுன்னு தான் கேக்குறேன். கிட்ட இருந்து வாங்கினீங்களா? அப்பா கிட்ட இருக்க அப்பா கார்டுல எப்படி பிறந்த தேதி தப்பா வந்திருக்கு? மாமா அதான் மாத்தி வந்து அடிச்சு பல்ல. அது அவர் ஏதோ மாத்தி கொடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். மாமா என்னடி உங்க அப்பா வருஷத்துக்கு ஒரு அது வந்து இது கார்டு எடுத்து பாக்கெட்ல வச்சு சுத்திட்டு இருக்காரா? இல்ல மாமா. எம்புட்டு கேவலமான ஆளா இருக்க நீ. ஐயோ மாமா, அத வரத கேளுங்க. அது என்னையோட 3 வயசு அப்படி இல்ல மாமா, நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. நான் சொல்லியோடி நீ. நீங்க தப்பா சொல்றீங்க. 3 வயசு இல்லையா, 2 வர மாமா. 2 தான், 2 வயசு 7 மாசம். அதுவும் நீங்க கணக்குன்னு பாத்து இப்பதானே சின்னவன் சொன்ன. வாய மூடு. சந்தோஷமா வாழ்றதுக்காக அந்த சந்தோஷம் தான் இல்லன்னு ஆயிடுச்சு. ஏய், கல்யாணம் பண்றது எதுக்குடி? 2 பேரும் சரி பல்ல கடிச்சிட்டாது உன் கூட வாழலாம்னு நினைச்சா தினம் தினம் ஒரு பொய்யா கண்டுபிடிச்சு அதிர்ச்சி ஆகி
அதுவும் இங்க முடியாது போல இருக்கே. அழுது புலம்பி ஏப்பா ஐயோ தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுடி விட்டு. ஐயோ மாமா. அவருக்கு ஐயோ என்னால முடியலடி, என்னால முடியல. ஏன்னா பையன் அறிவில்லாதவன். உன்னை கட்ட பாவத்துக்கு நீ சொன்ன பொய் எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பாத்தியாடி? எல்லாரும் உன்னை அப்படி நம்ம தாங்கிக்கிற. ஆனா எங்க வீட்டை பத்தி நீ கொஞ்சமா கேட்டு இருக்காங்கல்ல. நாங்கெல்லாம் எங்க குடும்ப இத்தனை வருஷமா எங்க அப்பா கடை நடத்துறாரு. ஒரு வாடிக்கையாளர் எம்பிட்டு நேர்மையா வாழ்றவங்க தெரியுமாடி? கூட அவர் ஏமாத்தணும்னு நினைச்சதே கிடையாது. ஆனா நீங்க ஒரு ரூபாய் சில்லறையில கூட அவர் ஏமாத்தணும்னு நினைச்சதே இல்லையடி. அசிங்கமா எங்க குடும்பத்தையே ஏமாத்திட்டீங்கல்ல. இதுக்கு மேல என்னால பொறுமையா இருக்க முடியாதுப்பா. ஐயோ இன்னைக்கு நான் வீட்டுல சொல்லதா போறேன். உன் படிப்பு விஷயம், உன் வயசு விஷயம், உன் வேலை விஷயம் எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு நான். तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं आज ये हमारी यूट्यूब पर पहली वीडियो है और हम फिर खेल रहे हैं लाइब्रेरी गेम, जो कि हम अक्सर खेलते हैं। हम फ्रेंड्स मिलके खेलते हैं, 2 जने, मैं और मेरा दोस्त। तो हम ना एक्चुअली रूम क्रिएटर खेलते हैं, मतलब वैसे नहीं खेलते हम। तो जैसे कि मेरा दोस्त पीछे मोनू, वो साथ में मैं, इस बंदे को फिनिश कर दिया मैंने। साथ का मेरा टीममेट आ रहा है वापस, आगे आ जाएगा वो टीममेट का। वो आ गया, अब वो कवर लेके बैठ गया इसके पीछे, तो कवर तोड़ना है हमें। और गाइस मैं चीज बता दूं, हम ना खेलते जो है ना इस गेम को, वो ऊपर ऊपर ही खेलते हैं। मतलब ये नहीं कि नीचे से भी आ रहा है कोई साइड से, नहीं खेलेंगे ऊपर ऊपर से। रूम खेलते हैं, कभी 4 के होते हैं, कभी और वाव मोड भी खेलते हैं। तो बहुत से अदर गेम खेलते हैं, मतलब खेलते पबजी में ही है, और भी अदर गेम्स खेलता हूँ मैं। देखो मेरे टीममेट ने इसको फिनिश कर दिया। टीममेट और मैं आगे चले गए पुश करने के लिए। इसका दूसरा टीममेट क्योंकि आ नहीं रहा था, तो दूसरा टीममेट नहीं आया, चक्कर में दोनों घुस गए और मेरे टीममेट ने इसको मार दिया। इसने मेरे को हेल्थ कम कर दी। तो मैं दोबारा गया वो चलता हूँ। देखो फिर मैं दोबारा गया। अगला वेपन मेरे पे यूज ही था, और उससे अगला वेपन वेपन चेंज नहीं हो रहा था मेरा। काफ़ी देर से बहुत परेशान हो रहा था इस वेपन से। देखो ये फिर लगेगा, इसके एक हेड खा चुका है जी, इसके अलावा बॉडी शॉट भी खा चुका है, फिर भी नहीं स्किल लग रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आगे जाऊँगा, मेरा टीममेट फिनिश हो जाएगा। मैं टीममेट को बोलता हूँ कि पुश करेंगे। टीममेट कहता है ठीक है। इतने में टीममेट पुश करने जाता है, इतने में इसको मेरे टीममेट को फिनिश कर देता है। ठीक है, अब मैं इसको खत्म करता हूँ, अब फिर मैं पुश करता हूँ उस पर। अब इनकी टीम की रील बन जाएगी। अब इनको आइडिया नहीं क्या होगा। ये आया, इसको दिखाई नहीं दिया। देखो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा था, मतलब मुझे लगा क्लियर दिख जाऊंगा मैं इसको, पर इसको नहीं दिखाई दिया। अब मैं इसकी टीममेट को दोबारा मारना था कि अब तक क्यों नहीं है बाहर आया, ये यहीं पर स्पॉन हो गया गेम की वजह से। अब ये स्पॉन से मेरे को मार दिया। अब मेरे फ्रेंड आएंगे, मेरा दोस्त आता है, वो इसको पेलता है, पर मेरा दोस्त ही पिल जाता है। गया तो पेलने था वो, पर वो पिल जाता है क्योंकि थोड़े से 2 टीममेट थे, दोनों टीममेट बाहर नहीं आ रहे थे। इसी वजह से मैं कहा बहुत देर हो गया, आ रहे तो आ जाओ, नहीं तो फिर हम मेरे में से एग्जिट कर जाएगा, या फिर मैं कर जाऊंगा एग्जिट, या फिर क्या कहते हैं मोनू एग्जिट कर जाएगा। मैं मोनू को बोलता हूँ पुश, मोनू पुश कर देता है इसमें, फिर मोनू पुश करके इसको खत्म करता है। मोनू वेपन चीनता है। हम दोनों 3 किल पे थे, उनका टीममेट अब आने लगेंगे। काफ़ी देर वेट करने तक नहीं आ रहे थे, क्योंकि फिर मैंने उनको वैसे बोला कि कहते हैं भाई अगर खेलना है तो ढंग से आओ, वरना मत खेलो। ठीक है गाइस, ये आया, वही है, ये भी कुत्तू ही आ रहा है, दूसरा टीममेट नहीं आ रहा। ले आना, आगे नहीं आता है ये, देखना काफ़ी देर तक नहीं आएगा। टीममेट आएगा, अब मैं ही पुश कर देता हूँ क्योंकि दिमाग खराब रहता है कि आई क्यों रहा। और एक्चुअली क्या, ऐसा पुश करने चक्कर में मैं पिलता हूँ, और मैं ही पीलूंगा, देखना पिल गया ना, दोनों को खा गया। ये चाहता हूँ तो यहाँ से मार सकता हूँ नीचे से, पर नीचे से मैं इसलिए नहीं मार रहा गाइस क्योंकि नीचे से मारूंगा तो फिर गेम ही खत्म हो जाएगी हमारी। और हमें डेली खेलते हैं तो फिक्स नहीं है, मैं फिक्स रूल है। कुछ लोग सोचेंगे क्या मजा आता है, ऊपर में 4 लोगों को बहुत मजा आता है। बिंदास, आपको भी ट्राई करना है इसको, या फिर आप चाहें तो आप हमारे साथ भी खेल सकते हैं, मेरे साथ भी खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं कवर ले लेता हूँ। कवर लेने के बाद फिर मैं दोबारा फाइट लेने जाऊँगा। मैं इसको बोलता, हाँ मैं दोबारा बोला कि अभी तेरे टीममेट नहीं आ रहे, तब इसके टीममेट आते हैं। देखो एक टीममेट आया, दूसरा ही आया। इतना गंदा गेम प्ले हो रहा था, मेरे को तो खेलने का मन ही नहीं कर रहा था उस टाइम पर। मैंने लगा कि फ़ोन ही फोड़ दूँ, इतना दिमाग खराब हो रहा था गेम खेलते वक्त। पर कोई नहीं, जीतेंगे हम ही, नहीं शायद हम ही जीतेंगे तो हम ही, हाँ, क्योंकि हमें जीतना है। देखा ये पेटा, इसको मैं दोबारा इसके टीममेट से पुश करूँगा मैं।
इसका टीममेट अब शो नहीं करता। ये सबसे बड़ी चीज अपने दूसरे जो बंदा है अपने टीममेट्स को क्या करता है, अपने टीममेट्स को रोक के खेलता है कि आप रुक के रहना, मैं जाऊंगा आगे, आप पीछे रहो, क्योंकि हम तो पुश करेंगे। अब वो पुश कर खेलते नहीं है। अब वो थोड़े से चाहे कमजोर प्लेयर मान लो, जैसे मर्जी मान लो, मेरे जो तो कमजोर प्लेयर है इस वजह से वो आगे नहीं आती है, वरना तो कोई डेफिनेटली कोई भी प्लेयर हो तो वो आगे आएगा और पुश करेगा, क्योंकि गेम एग्रेसिव खेलने में ही मजा आता है। वैसे झुक के देखना पीक लेके खेलना इसमें मजा ही नहीं आता। अब तो काफी देर तक ही नहीं आएगा। मैं ओपन तक इतना बाहर आ जाता हूँ तब भी बाहर नहीं आएगा। अब आया गया, आते गया ना। इस चक्कर में मेरा दोस्त देखो मैं किससे पिटा, नूबड़े से जो ही कवर लेके बैठा उस रूम से पिट रहा हूँ मैं। ये अब आएगा बंदा, आएगा ये दोबारा फायर मारता हूँ। नहीं बच गया। तो बैरल ना हिलती बहुत है यार, बहुत हिलती है बैरल ना। दिख रहा है मुझे आएगा। छोटी सी जहाँ दिख रहा था। एक वाली मुझे किस्मत मेरी इतनी गंदी लगती है कि वो जब मैं पी लेता हूँ तो बंदा को जागता ही नहीं। देखो वो जागा गया। अभी इसके पीछे कोई बैठा है या नहीं बैठा है, यहाँ बैठा है, ये भी गया। तो गाइस अपना गेम प्ले फाड़ू खेलते हैं अपन, पर अगला सामने बंदा भी पुश करके खेलने वाला तो मजा आता है। अब मेरे टीम में कितना ओपन खड़ा है कि आओ मारो, कोई तो हमें फिनिश करे। गोली इतनी चला देते हैं हिसाब नहीं बैठता। देखो ये आया, एक गया, दूसरे में टीममेट खा गया। हम दोनों आगे पहुंच जाएंगे अब, क्योंकि रिस्पॉन होके आएंगे पुश करने के लिए। ए अब आएगा, आजा आने वाला है साइड एंगल से देख के आएगा। और ये अभी तक नहीं आया। देखो कितने बेशरम पूरे घर से मतलब बाहर ही नहीं निकल पाया अब तक प्लेयर। बताओ, पैरों से मार दिया मेरे को, सारे फायर पैरों पे। बड़ी गंदी गन है इसमें, इस गन को होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस गन को होना ही नहीं चाहिए इस गेम के अंदर। तो ये गेम इतनी खराब कर देती है गन में, बड़ा बेकार लगती है। कभी बार उतनी बढ़िया फाइट लेती है, देखो हेड लगे, 3-4 हेड लगे तो जाके मरा बंदा, वरना मरता ही नहीं। कितने हेड मारने पड़े मेरे को इसके लिए, देखो शॉट के लिए। अब ये दोबारा आता है फटफटी में ऑटो पे अपने MK14 हेड ओम से आता हूँ मैं, शॉट मरता ही नहीं है। देखो कैसे ग्लिच होता है ना। हमें लगता है कि गेम हमने मार देंगे, पर वो उससे पहले ही अब मेरा दोस्त क्रॉसबो खा जाएगा, मर जाएगा। अभी नहीं मरेगा क्रॉसबो, तो बहुत देर लंबे टाइम तक मरता है, क्योंकि अभी तो शायद फाइट होगी इसी मेरी काफी देर तक। क्रॉसबो के बाद उसको पेन आएगा, पेन में गेम खत्म हो जाएगी। और पी किल लेगा, फिर काफी देर में से वेट करने के बाद ये तो लेगा नहीं। इसके चेले को ही मारता हूँ, फिर चेले को देखता हूँ, चेला कहाँ है। चेला पी किल नहीं लेता, चेला दिखेगा, चेला आएगा। बच गया। कितना मिस करता है, कितने पॉइंट मिस कर दिए थे। मेरा फ्रेंड गया, अब मेरे पे आ गई है। ये बाहर ही नहीं आने वाला, ये बाहर ही नहीं आएगा। मैं अपने फ्रेंड को कॉल देता हूँ कि वापस पीछे आ जाए, क्योंकि उसके पास वो है